السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، ہم نے پچھلی کلاس میں آپ کے 3 چیپٹرز گرامر کے پڑھے ہیں جو کہ مرکب پر مشتمل ہے۔ کس پر مشتمل ہے؟ مرکب پر، یعنی جملے کو کس طرح ترتیب دی جائے۔ جملے کی اقسام پڑھائے گئے ہیں، یعنی ہماری عربی زبان میں جملے کی چند اقسام ہے۔ جملے کو چند حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، جن میں سے خاص جو حصے ہیں، جو خاص قواعد کے لیے جملہ ترتیب دیا جانا ہے، وہ 4 آپ کے نصاب میں رکھا گیا ہے۔ وہ ہے مرکب اضافی، مرکب توصیفی، جملے اسمیہ، جملے فعلیہ۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ کلمے کو جوڑ کر، یعنی چند کلمات کا مجموعہ جملہ کہلاتا ہے۔ چند کلمات کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ کہلاتا ہے۔ جملے کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، جملے تام، جملے ناقص، یعنی مرکب تام، مرکب ناقص۔ مرکب ناقص وہ جملہ ہے جس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، جو کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ مرکب اضافی، جس کی 2 قسمیں پڑھی ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں لیکن ہم نے 2 قسمیں پڑھی ہے، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ اب ہم جملے تام پڑھنے جا رہے ہیں۔ جملے تام یعنی وہ جملہ جو اپنے کہنے کے بعد ہم کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، یعنی وہ جملہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، اس کو جملے تام اور جملے تام کہتے ہیں۔ جملے تام کی 2 قسمیں ہیں، جملے فعلیہ، جملے اسمیہ۔ جو ہم نے جملے اسمیہ کو پچھلی کلاس میں پڑھا ہے، وہ جملے اسمیہ 2 قسموں پر مشتمل ہے، اور پہلا مبتدا، اس کا پہلا جز مبتدا اور دوسرا جز خبر ہے۔ اس طرح اس کی ترکیب پڑھی گئی ہے۔ لیکن اب جملے فعلیہ، آج کا چیپٹر نمبر 4 جو گرامر سیکشن سے ہے آپ کے، جملے فعلیہ یعنی وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ جملے فعلیہ کس کو کہیں گے؟ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ فعل مین ایکٹ، یعنی کام، کسی بھی کام کا ہونا۔ کسی بھی کام کو کیا کہیں گے ہم؟ فعل کہیں گے۔ کسی بھی کام کو ہم فعل کہیں گے۔ تو وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے، اس کو جملے فعلیہ کہا جاتا ہے۔ میں اس کا قاعدہ عربی میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ القاعدۃ الجملۃ الفعلیۃ، تشتمل الجملۃ الفعلیۃ علی 3 اجزاء۔ جملہ فعلیہ 3 جز پر مشتمل ہے۔ کتنے جز پر مشتمل ہے؟ 3 جز پر مشتمل ہے۔ الفعل والفاعل والمفعول، فعل، فاعل اور مفعول۔ جملہ فعلیہ 3 جز پر مشتمل ہے، اور وہ کیا ہے؟ فعل، فاعل اور مفعول۔ جیسے کہ ہم نے جملہ اسمیہ 2 اسموں پر مشتمل تھا، مبتدا اور خبر۔ یہاں پر جملے فعلیہ کی ترکیب میں یہ بتایا گیا ہے کہ جملے فعلیہ 3 اجزاء پر مشتمل ہے، وہ ہے فعل، فاعل اور مفعول۔ اس کے بعد فعل کی تعریف کی جا رہی ہے۔ الفعل ما دل علی ای زمان، اور فعل کیا ہے؟ یہاں پر بتایا جا رہا ہے فعل یہ کسی ایک زمانے میں کام کو بتاتا ہے۔ فعل کیا ہے؟ کام کا ہونا کسی ایک زمانے میں بتایا جاتا ہے۔ فعل تینوں زمانوں میں سے، یعنی ماضی، حال، مستقبل، یہ تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے۔ یہاں پر فعل کیا بتا رہا ہے؟ کام کو کسی ایک زمانے میں ہونے کا بتا رہا ہے۔ اس کے بعد فاعل ما اسند علیہ الفعل وهو الذي
यक़दुरु अलैहुल फ़ैल वला यकूनु मुक़द्दमन अलल फ़ैली। अब यहाँ पर फाइल की तारीफ की जा रही है। फाइल किसको कहेंगे? काम की निस्बत जिसकी तरफ की जाए, यानी काम करने वाला, और ये हमेशा फाइल के बाद आता है। यानी काम की निस्बत जिसकी तरफ की जाए, मा उसनिदा अलैहिल फ़ैलु, काम की निस्बत किसकी तरफ हो रही है? फाइल की तरफ हो रही है। जैसे जिससे काम सादिर हो रहा है, यानी फ़ेल काम है, जब तक उसको किसी ने ना किया वो सादिर हो ही नहीं सकता। उसकी निस्बत फाइल की तरफ की जाती है। काम की निस्बत फाइल की तरफ हो रही है। उसके बाद मफ़ऊल जो है, मा दल्ला अला मन वक़ा अलैहिल फ़ैलु फ़ाइली यकूनु मंसूबन व दाइमन। उसके बाद यहाँ पर फाइल की तारीफ की जा रही है। यहाँ पर मफ़ऊल की तारीफ की जा रही है, वो है जिस पर फाइल के फेल का असर हो। मफ़ऊल हमेशा मंसूब होता है। मफ़ऊल हमेशा मंसूब होता है। अब मैं ये बताऊं आपको कि ये जो कवायद है फेल, फाइल और मफ़ऊल, यानी ये जो जुमले फेलिया की तरकीब जो है, दर हकीकत इसमें फेल, फाइल और मफ़ऊल का क्या एराब है, इसका ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका एराब क्या होगा? इसका एराब ये है कि फेल के बाद जो फाइल आता है वो हमेशा पेश वाला होता है। फाइल जो है हमेशा पेश वाला होता है। फाइल जो है हमेशा पेश वाला होता है। और मफ़ऊल पर हमेशा जबर आता है। मफ़ऊल पर हमेशा जबर आता है। देखिए, वो है जिस पर फाइल के फेल का असर हो। मफ़ऊल क्या है? जिस पर फाइल के फेल का असर हो। और मफ़ऊल हमेशा मंसूब होता है। मफ़ऊल हमेशा क्या हो रहा है? यहाँ पे मफ़ऊल हमेशा मंसूब हो रहा है। मफ़ऊल हमेशा मंसूब होता है। उसकी एराबी हालत यानी ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर आपको एराब लगाना हो मफ़ऊल के लिए तो वो क्या होगा? जबर होगा। इसी तरह यहाँ पर चंद एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। कतबा खालिदुन दरसा, कतबा खालिदुन दरसा, खालिद ने सबक लिखा। दखल उस्ताद फसला, उस्ताद क्लास में दाखिल हुए। उस्ताद क्लास में दाखिल हुए। तो यहाँ पर कतबा जो है, यहाँ पर कतबा जो है वो क्या है? फ़ैल है। कतबा जो है वो फ़ैल है। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रही हूँ कि ये जो कतबा है, कतबा खालिदु अद-दरसा, अद-दरसा, यहाँ पर कतबा फ़ैल, खालिदुन फ़ाइल और अद-दरसा मफ़ऊल। कतबा ये फ़ेल है, खालिदु फ़ाइल यानी काम के करने वाला, काम का करने वाला। यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है काम के करने वाले का। तो कतबा खालिदु दरसा, खालिदु दरसा, तो ये फ़ेल जो है कतबा है, काम है, काम के करने वाले को फाइल कहा जाता है। काम किससे सादिर हो रहा है? लिखना किससे सादिर हो रहा है? खालिदु, खालिद से। तो इसका एराब होगा पेश, चाहे वो अलिफ लाम के साथ हो या बगैर अलिफ लाम के हो, ये दोनों हालतों में पेश ही से पढ़ा जाएगा। अब उसके बाद अब कतबा खालिदु अगर कहा जाए तो खालिद लिखा। अब क्या लिखा? तो मफ़ऊल दरसु, दरसा क्या है? ये मफ़ऊल जो है दरसा है। मफ़ऊल क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? दरसा, सबक लिखा। तो
काम के करने का असर जिस चीज पे हो उसको मफऊल कहते हैं। काम के करने का असर जिस चीज पर हो उसे मफऊल कहा जाता है और उसका एराब हमेशा जबर होता है। उसका एराब क्या होता है? हमेशा जबर होता है। उसी तरह दखला अल उस्ताज़ु दखल अल उस्ताज़ु फसला। अगर मैं कहूं तो यहां पर दखला फ़ेल, जुमले फेलिया की तरकीब, और अल उस्ताज़ु फ़ाइल और अल फसला मफ़ऊल। मफ़ऊल तो यहाँ का एराब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि फ़ाइल का एराब पेश और मफ़ऊल का एराब जबर होता है। तो जुमले फेलिया की तरकीब इस तरह की जाती है, जुमले को दो या दो से ज़ायद कलिमा से मिलाकर बनाया जाता है। एक बार और मैं मुख्तसरन आपको बताती हूँ, फेल और फाइल से जो जुमला मुकम्मिल होता है वो उसको फेल लाजिम कहते हैं, और फेल फाइल मफऊल से जो जुमला मुकम्मिल होता है उसको फेल मुताद्दी कहते हैं। ये जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको मालूमतन बता रही हूँ कि आपको हर चीज से आगाह किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इसकी तरकीब है वो अच्छी तरह हमको समझ में आ गई है, और प्रैक्टिस के लिए हम चंद और जुमले पढ़ेंगे और इसकी मश्क करेंगे। जुमले फेलिया के चंद जुमले जो हम अब जिसकी हम मश्क करने जा रहे हैं, यानी जिसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, और उनको उनके अज्जा के साथ पढ़ेंगे। किसके साथ पढ़ेंगे? उनको उनके अज्जा के साथ पढ़ेंगे। वो ये है कि जुमले फेलिया 3 अज्जा पर मुश्तमिल है, फेल, फाइल, मफूल। तो पहले जुमले में हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि फेल कौन सा है और फाइल कौन सा है और मफूल कौन सा है। फहिमा नबीलुन अल अस्इलता, फहिमा नबीलुन अस्इलता, नबील सवालात समझा। तो ये फहिमा जो है वो क्या है? फेल है। क्या है ये? फेल है। और नबील फाइल, नबील क्या है? फाइल है। और सवालात जिसको समझा जा रहा है मफऊल। क्या है ये? मफऊल। तो फहिमा फेल है और नबीलुन जैसे कि यहाँ पर उसका एराब क्या होगा? पेश होगा। मफऊल हमेशा जबर वाला होता है। तो फेल के बाद जो फेल यानी काम के करने वाले को फाइल कहा जाता है, और काम के करने का असर जिस पर पड़ता है वो है मफऊल। वो क्या है? मफऊल। चंद जुमले ऐसे होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि चंद जुमले फेल और फाइल से कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन बाज़ जुमलों को मफऊल की जरूरत पड़ती है। तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। अगर 2 ही जुमलों वाला अगर जुमले फेलिया बताया जाए तो परेशान नहीं होना, बल्कि फेल और फाइल लिखकर आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। इससे सवाल की गुंजाइश नहीं बनती। दूसरे जुमले के लिए भी उसी तरह की मश्क की जा रही है। सजदल इमामु फिल मस्जिदी। अब यहाँ पर 4 जुमले हैं और वो किस तरह बनाए जा रहे हैं यहाँ पर देखिए। सजदा फेल, अल इमामु फाइल काम के करने वाला, फीजर ये मजरूर, फीजर और ये मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मफऊल हुआ। क्या हुआ? जार मजरूर से मिलकर इसकी तरकीब क्या होगी? ये मफऊल होगा, मफऊल होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। यहाँ पर मफऊल मुजाफ मुजाफ इलैह भी हो सकता, मौसूफ सिफत भी होकर मफऊल बनता है, और जार मजरूर भी होकर मफऊल बनता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फेल फाइल
اور جر مجرور سے مل کر مفعول بنا. فعل اور یہ فاعل اور اس کی ترکیب جر مجرور سے مل کر مفعول بنی. تو بالکل آپ کو کیا کرنا ہے, اس کو انڈر لائن کر کے مفعول لکھ سکتے ہیں. اس کا اعراب زیر ہے, جبکہ یہ پیش تو حالت رفعی میں ہاں یہ زبر کی حالت میں ہے, کیونکہ جر کی وجہ سے یہاں پر زیر دیا جا رہا ہے. اس کے بعد یلعب الاولاد یلعب الاولاد بالکرۃ, سیم اوپر کے جملے کی طرح یہاں پر بھی فعل فاعل اور جار مجرور سے مل کے مفعول بن رہا ہے. لڑکے گولے سے کھیل رہے ہیں. امام نے مسجد میں سجدہ کیا. اکل الولد قاما, لڑکا کھانا کھایا. اکلا فعل, پھر یہاں پر اکلا فعل, الولد فاعل اور طعام جس پر اثر ہو رہا ہے مفعول. کیا کہیں گے اس کو؟ مفعول کہیں گے. یہاں کا اعراب ایز اٹ از ہے, کیونکہ یہاں پر کوئی حروف جر وغیرہ نہیں ہے, تو ڈائریکٹلی آپ کو یہاں پر زبر سے پڑھایا جا رہا ہے. یہاں پر قرأ ہونا چاہیے, تو قرأت کس لیے؟ تو یہ مؤنث کا صیغہ ہے. فعل میں 14 صیغے ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں اچھی طرح. فعلا کیا وہ ایک مرد, فعلا کیے وہ 2 مرد, فعلو کیے وہ سب مرد. اسی طرح 14 صیغوں سے گردان بنتی ہے, تو ہم کو یہاں پر مؤنث واحد کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ مؤنث. قرأت کے معنی ہے پڑھی وہ ایک عورت, پڑھی وہ ایک عورت. اب قرأت لینے کے بعد طالبۃ یعنی اسٹوڈنٹ ہے, وہ بھی کون ہے؟ مؤنث ہے. اسٹوڈنٹ ہے, مؤنث ہے, یعنی گرل ہے. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گرل ہے. قرأت طالبۃ المجلتی, المجلتا. کیا ہے یہاں پہ؟ لڑکی رسالہ پڑھی. کیا پڑھی یہاں پہ؟ لڑکی رسالہ پڑھی. اس کا معنی یہ ہوگا. اس کے بعد نور البدر بدر السماء, چاند نے آسمان کو روشن کیا. یہاں پر چاند جو ہے فعل ہے, نورا روشن کرنا فعل ہے, اور البدر روشن ہونے والا جس نے روشنی پھیلائی ہے وہ فاعل ہے. اور کہاں پر روشنی پھیلائی گئی ہے؟ مفعول کو کیا کہیں گے؟ مفعول کہیں گے. اسی طرح قرأت طلاب قرآن, لڑکا قرآن پڑھا. قل هو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے. قل یہ صیغہ کیا ہے؟ یہاں پر کنفیوز نہیں ہونا ہے, یہاں پر بھی فعل ہی ہے, یہ فعل ہے اور ہوا ضمیر ہے. تو یہاں پر قل کے معنی فعل پڑھ کے ہے, کہہ دیجئے, اس طرح کے ہے, آپ کہہ دیجئے. قل کے معنی کیا ہے؟ کہہ دیجئے. یہاں امر کا صیغہ ہے. آپ آئندہ انشاءاللہ آگے جب فعل کی تفصیلات پڑھیں گے, اس کے اقسام پڑھیں گے, تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا. تو یہ قل جو ہے فعل ہے, کہو اللہ ایک ہے. فتح القادم باب البیت, باب البیتی. فتح فعل ہے, القادم فاعل, باب البیتی یہاں پہ مضاف مضاف الیہ ہو رہا ہے. کیا کس طرح مضاف مضاف الیہ ہے؟ گھر کا دروازہ, مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بنا. مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنا؟ مفعول بنا. اس طرح آپ کی ترکیب ہوگی. یہ فعل, یہ فاعل اور یہ مضاف الیہ مل کر مفعول بنا. کیا بنا؟ مفعول بنا. اس طرح کی ترکیب ہوگی, تو بالکل کنفیوز نہیں ہونا ہے. اب اسی طرح شرح الاستاذ الدرس, استاد نے سبق سکھایا. استاد نے کیا کیا؟ یہاں پر سبق سکھایا. تو یہاں پر یہ جو جملے ہیں آپ کو پریکٹس کے لیے اس لیے دیے گئے ہیں کہ آپ کے بٹ نمبر 13 میں سوال کیا جائے گا, اکتب اجزاء جملۃ الفعلیہ
बिल-अम्सिलती, ठीक है, यानी चंद जुमले उसके अज्जा के साथ लिखें, जुमले फेलिया के अज्जा के साथ लिखें। तो आप किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अच्छी तरह बताया है, नव्वरल बदरु समा, यहाँ पे फेल फाइल मफूल, इस तरह अगर आप डाल देंगे ये दो जुमले तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। शरहल उस्ताद दरसा, तो यहाँ पर उस्ताद ने सबक किया, सबक समझाया, तो यहाँ पर भी इस तरह का आपको लिखना है। ये दोनों अगर जुमले आप या दो से ज्यादा जितने चाहे आप डाल सकते हैं, इसको इस तरह तरकीब से आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छी तरह आ जाएंगे। यहाँ पर इस तरह के सवालात आ सकते हैं, तो एक बार फिर से देख लें ताकि हम आपको अच्छी तरह समझने में आसानी हो। मैं एक बार फिर से आपको मुख्तसरन रिवाइज करती हूँ कि देखिए, कलीमे के चंद मजमुओं का कलीमा क्या है, एक वर्ड है, और वर्ड चंद हरूफ का मजमुआ क्या कहलाता है, कलीमा कहलाता है। और कलीमों का चंद कलीमों का मजमुआ क्या है, वो जुमला कहलाता है, मुरक्कब कहलाता है। जुमले की 2 अक़साम है, जुमले ताम, जुमले नाक़िस, जिसको मुरक्कबे नाक़िस और मुरक्कबे ताम भी कहा जाता है। हमने जुमले नाक़िस की 2 किस्में पहले ही पढ़ चुके हैं, मुरक्कबे इज़ाफ़ी और मुरक्कबे तौसीफ़ी। अब हम जुमले ताम की अक़साम में से एक किस्म पढ़े हैं, वो है जुमले फेलिया, और हम पहले जुमले इस्मिया पढ़ चुके हैं। जुमले फेलिया 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। जुमले फेलिया 3 अज्जा पर मुश्तमिल है, फेल फाइल मफूल। जुमले फेलिया का पहला जुज फेल, दूसरा फाइल और तीसरा मफूल होगा। जुमले फेलिया किससे शुरू होता है, फेल से शुरू होता है। और जुमले फेलिया का जो जुज है फाइल, उसका एराब पेश और मफूल का एराब जबर होता है। ये बात ध्यान में रखते हुए आप इस चैप्टर को अच्छी तरह समझे तो आप आगे की तमारीन आसानी से कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जुमले फेलिया जो है हमने पढ़ा है, उसी के ज़मन में हम ये जो तरकीब यानी ये जो आपके सिलेबस में चंद क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, वो बिट नंबर 15 के लिए 6 मार्क्स के लिए इस तरह का सवाल आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर आपको चंद जुमले दिए जाएंगे और उसको गैर मुकम्मिल नहीं किया जाएगा, और उसकी जो इस्तेमाल करदा जुमले हैं, जो वहां पर फिट होने वाले जुमले हैं, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट डैश में यासिरू सूरतुल अस्र, तो अब यहाँ पर जो जुमले दिए गए हैं नीचे आपको, जिसको आप वहां पर लिखना है, तो मैं पहले तो आप करना ये चाहिए कि इन जुमलों को पढ़ लें और उसका ट्रांसलेशन कर लें ताकि आपको यहाँ पर फिट करने में आसानी हो। सजदा यानी सजदा किया, दखला यानी दाखिल हुआ, फहिमा यानी समझा, कतबा यानी लिखा। अब यासिरू सूरतुल अस्र में अगर कहा जाए सूरे अस्र यासिर, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, किस तरह उसको कौन सा फेल इस्तेमाल किया जाएगा, फहिमा। क्या इस्तेमाल किया जाएगा, फहिमा। यासिर सूरे अस्र समझा, क्या कहेंगे, यासिर ने सूरे अस्र को समझा। किस तरह ट्रांसलेशन होगा उसका, यासिर ने सूरे अस्र को समझा, ठीक है। उसके बाद अल वलदु जवाबता, अल वलदु जवाबता में अगर दखला लिखा जाए तो गैर मुनासिब होगा, तो कतबा अगर आप लेंगे तो ये जुमला मुकम्मिल तौर पर पढ़ा जा सकता है। कतबल वलदु जवाबा, कतबल वलदु जवाबता, ठीक है, लड़के ने जवाब लिखा। उसी तरह अत्तालिबुल फसला अगर कहा जाए तो यहाँ पर क्या इसकी क्या मुनासिबत होगी, दखला,
क्या फेल आएगा यहाँ पे? दखला, दखलत तालिबु अल-फसला, तालिब इल्म क्लास में दाखिल हुआ, तालिब इल्म क्लास में दाखिल हुआ। इमामु फिल मस्जिदी, अल इमामु फिल मस्जिदी, यहाँ पर सजदा का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर सजदा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? सजदल इमामु फिल मस्जिदी, इमाम ने सजदा किया मस्जिद में। क्या इस्तेमाल होगा? इमाम ने सजदा किया मस्जिद में। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको हमें प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह याद करने की कोशिश करें और समझकर इसको सॉल्व करें। उसके बाद नेक्स्ट बिट है कुम बि सहीहिल जुमल, यानी करेक्ट द सेंटेंस। ये आपको बिट नंबर 16 में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। देखिए, आपको चंद जुमले दिए जाएंगे इस तरह के और उसका आपको करेक्शन करना है। किस किस तरह आपको करेक्शन करना है मैं यहाँ बता रही हूँ। सजदा फिल मस्जिदिल अल इमाम, तो यहाँ पर तरकीब में गड़बड़ है। हमने पढ़ा है लास्ट टाइम, फेल के बाद फाइल होगा, फेल फाइल मफूल से मिलकर जुमले फेलिया बनता है। तो यहाँ पर फेल तो है सजदा, यहाँ पर फेल है, लेकिन फेल के फौरी बाद फाइल नहीं है, काम के करने वाला मौजूद नहीं है, मगर जिस पर काम का असर हो रहा है वो मौजूद है। तो इसकी तरकीब गलत है। यहाँ पर जो है ये मफऊल है, ये क्या है? मफऊल है, जो कि यहाँ नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर पहले क्या आना चाहिए? फाइल आना चाहिए। पहले फर्स्ट फेल, सेकेंड फाइल, सेकेंड फाइल और थर्ड मफऊल। ये तो इस तरह आपका जुमला सही तरकीब होगा। तो सजदल इमामु फिल मस्जिदी, क्या है? फेल फाइल मफऊल, ठीक है, मफऊल आ गया यहाँ पर। तो इसकी तरकीब सही से आ गई ना, फेल फाइल मफऊल, ये जुमला आपका सही हो गया। यहाँ पर इन्होंने तरकीब गलत बनाकर आपको दी थी, जिसका हमने सही किया फेल फाइल मफऊल की तरह। फिर दूसरे जुमले में दखलत फातिमतुल फसला, तो ये जो दखलत है ये मुजक्कर वाहिद का सेगा है। दखलत क्या है? मुजक्कर वाहिद का सेगा है। तो फातिमा मुअन्नस है, इसी वजह से हम ये दखलत को रॉन्ग करते हुए दखला को रॉन्ग करते हुए दखलत लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? दखलत फातिमतु, ये मुअन्नस है, मुअन्नस का सेगा है ये जुमला इस तरह करेक्ट होगा, फातिमतु फसला, ठीक है। उसके बाद उसी तरह ज़हबत हामिदु इलल बैती, अब यहाँ पर हामिद के लिए मुअन्नस का सेगा लिया गया है जो कि दुरुस्त नहीं है। ये मुअन्नस का सेगा है जो कि हामिद के लिए दुरुस्त नहीं है। तो ज़हबा इस्तेमाल किया जाएगा और हामिद इलल बैत, ठीक है। इस तरह यहाँ पर मुजक्कर का सेगा सही होगा, यहाँ पर मुजक्कर लिया जाएगा। इसको इस तरह सही किया जा रहा है, तो गौर करें और जुमलों को सही लिखने की कोशिश करें। कतबत, फिर यहाँ पर सेम मिस्टेक की गई है, वो ये कि मुअन्नस का सेगा लाया गया है जबकि हामिद यहाँ पर मुजक्कर है। मुजक्कर को कतबत नहीं बल्कि कतबा लिखा जाएगा और हामिदुल हिसाब, तो हामिद ने हिसाब लिखा, हामिद ने हिसाब लिखा। तो जुमले फेलिया में और मफऊल के हिसाब से उसका फेल लिखा जाता है, फाइल के हिसाब से उसका फेल लिखा जाता है। अगर फाइल मुजक्कर है तो मुअन्नस लेंगे, मुजक्कर लेंगे, अगर फाइल मुअन्नस है तो मुअन्नस लेंगे, वाहिद है तो वाहिद लेंगे, तस्निया है तो तस्निया और जमा है तो जमा। उसी की मुनासिबत से जुमलों की तरकीब पाई जाएगी। तो हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या किस तरह की तरकीबें हैं। आपने पहले भी फेल के हिसाब में चंद आपको गर्दाने बताई गई थी, उस लिहाज से फ़आला, फ़आला, फ़आलू, यहाँ पर अगर मुअन्नस हो तो फ़आलत, कतबत, इस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, आराम से आपको करना है। ये जो जुमलों की तस्हीह मैंने बताई है बिल्कुल आराम से, इंतहाई कंफ्यूज नहीं होना है। 1 से 2 बार पढ़ेंगे जुमले तो बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे।
इस तरह। तो आपको एग्जाम में ये पूछा जा रहा है तो ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, बस जुमले को बिल्कुल साफ सुथरा इस तरह लिख दे तो आपको आसानी होगी। ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाने के तौर पे लिखा है। तो आप बिल्कुल इस तरह लिख दे, बिल्कुल इस तरह लिख दे। कतबत की जगह कतबत हामिदु हिसाबा, तो हिसाबत, तो इसको कतबल हामिदु हिसाबत काफी है, सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं। तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जुमला फेलिया को मुकम्मिल किया है आज। तो इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में हम जो है इसकी ग्रामर की नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।